morning, students. I am Ramchandra Yadav to teach you English at first year level. I made you to be aware of the poem, a photograph, yesterday, and today I am also revising the same poem. I want to make you understand that what this poem is. In the first lesson, the portrait of a lady, you have studied about the photograph, that how a photograph makes someone to attract towards it. In this poem, the poetess Shirley Tulson is thinking about the photograph of her mother and how they had been on a beach along with her mother, how they enjoyed the sea beach, and it has been presented in this poem. So now the reading of the poem again. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl, some 20 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changeless, was their terribly transient fate. Here, the cardboard shows me, cardboard here, the photograph that has been printed out from the camera, यानी वह चित्र जो कैमरा से अभी अभी निकला है वो कार्डबोर्ड का है. Shows me how it was, ये कैसे है, when the two girl cousins की जब दो बहनें हैं, cousins हैं, went paddling. Paddle means to walk with unsteady steps. अस्थिर पैरों से. सैलो वाटर है और उस सैलो वाटर में समुद्री इस किनारे पर वे कूद रही हैं, अपना जंप कर रही हैं, धीरे धीरे अपने पैर रख रही हैं. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और हर कोई मेरे माँ के हाथ को पकड़ा हुआ है. तो माँ के हाथों को पकड़े हुए दे आर इंजॉइंग, दे आर जंपिंग इनटू द सी वाटर एंड गेटिंग प्लेजर. एंड सी द बिग गर्ल, और जो बड़ी लड़की है, सम 12 years or so, कुछ 12 वर्षों की. ऑल थ्री स्टूड स्टिल, वे सब के सब तीनों खड़ी हैं. टू स्माइल थ्रू दियर हेयर, दे आर ऑल स्माइलिंग, दे आर वेरी चीयरफुल. दियर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, एंड uncle is making a photograph from the camera. He clicks the camera and there comes the photograph. To smile through their hair, and how their hairs with the effect of the wind, they are scattering and looking very fine. बाल जो हैं वे हवा बहती है, हवा से बाल बिखर जाते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं. At the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, मेरे माँ का सुंदर चेहरा. That was before I was born, जो मेरे जन्म के पहले का है. And the sea, और एक समुद्र, which appears to have changeless, जो लगता है कि उसी तरह से है और उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है. was their terribly transient fit. Transient fit, here the term transient. Transient means that is not static, that is not fixed, जो स्थिर नहीं है. Temporary, transient means temporary, जो अस्थायी है. was their terribly transient fit, जो उनके अस्थायी पैर हैं, जो स्थिर नहीं है. ऐसे पैरों को यह समुद्र धो रहा है. मीन्स द सी बीच वेलकम्स देम, ये समुद्र का जो तट है उनका स्वागत करता है. Some 20-30 years later, here the period of 20-30 years, 20 या 30 वर्ष का जो समय है, years later she would laugh at the snapshot. Snapshot means photograph, taking photo, यानी फोटो जैसे लिया गया है. she would laugh at, जैसे हंसती हुई स्थिति है माँ की. सी बेटी एंड डॉली, वह बेटी और डॉली को देखती है. बेटी एंड डॉली द कजिन्स,
They are all very cheerful. How they are in a very fine dress. They have put on the dresses. कैसे वे सुंदर कपड़े पहनी हैं, ऐसे वस्त्रों को देख करके बेटी और डाली को वो बहुत ही खुश होती है. एंड लुक्स हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच. बीच कहते हैं समुद्र का तट, मतलब दे आर टेकिंग दी जॉय ऑफ द बीच. बीच माने समुद्र का किनारा. इस समुद्र के किनारे वे कैसे आनंद ले रहे हैं. द सी हॉलीडे वाज हर पास. यह जो समुद्र की छुट्टी है, समुद्र का जो इन्वायरमेंट है, ये उसका अतीत है. माइन इज़ हर लाफ्टर. और कवियत्री कहती है कि उसके लिए क्या है, उसकी हंसी ही बहुत है. यानी वह हंसी ही देख करके मुग्ध है. बोथ री विद द लेबर्ड ईस ऑफ लॉस. री मीन्स डिस्गस्टेड, निराश, हताश, दोनों निराशा की स्थिति है. बोथ री with the labored ease of loss means how they are getting restless and how their pleasure or joy is faded or away. Now she has been dead. कवियत्री, पोएटिस शर्ली टल्सन अपनी माँ के बारे में बताती. She has been dead nearly as many years. मरे हुए माँ को कई वर्ष हो गए. As that girls lived, जैसे वह रही एक लड़की के रूप में. एंड ऑल दिस सर्कमस्टेंस, और ये जो परिस्थितियाँ हैं, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. आज कुछ भी कहने की स्थिति नहीं है. माँ के फोटोग्राफ को देख करके कवियत्री को याद आती है और वह दुख व्यक्त करती है. देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस. और मात्र एक शांति रह जाती है, मौन की स्थिति दिखाई देती है. तो ये आपकी कविता है, आप इसको पढ़ें, याद करें. फिर अवसर मिलेगा तो इस सिलेबस के क्रम में फिर आपको रिवाइज किया जाएगा. और आपको इस पोएम की समरी मैं फ़ोटो कापी के माध्यम से भेज रहा हूँ. इसको आप लोग तैयार कर डालें. तो आपको फर्स्ट जो आपका एसे क्या आयो कहिए कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एंड सेकेंड पोएम ए पोर्ट्रेट. अब इसके बाद जो है आपको अगला लेसन हमें फिर पढ़ना होगा, तो उसे पढ़ाया जाएगा. अच्छी तरह से इसको आप लोग तैयार करें. और इसमें कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है. ये पोएम से संबंधित भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोगों को कल दिया जाएगा. आज आप लोग इसको रिवाइज किए और ये जो फोटोग्राफ ये पोएम है, इसकी समरी है, इसको आप लोग लिख करके